देखिए, बहुत दुखद घटना कल सामने आई है और आप सब उससे वाकिफ़ हैं। दुखद ही नहीं, ये निंदनीय घटना है और जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है, पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। तो आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनज़र हम लोगों ने आज FIR भी दर्ज कराया हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने। मैं उस विधायक द्वारा की गई कंप्लेंट को पढ़ के सुना देता हूं। टू द ऑफिसर इंचार्ज अरगोड़ा रांची, आई अनूप सिंह MLA of Jharkhand would like to lodge a complaint regarding offer of gratification being offered to me to topple the present government of JMM and Congress, which came to power with a thumping majority. Shri Irfan Ansari, MLA Jamtara, Shri Rajesh Kachchap, MLA, and Shri Bixal Kongari, MLA, are calling me to Kolkata and offering me money, and they are promising 10 crores per MLA. Shri Irfan Ansari and Rajesh Kachchap wants me to come to Kolkata and then take me to Guwahati, where according to him, he will make me meet Shri Hemant Biswa Sharma, who will give me assurance of a definite ministerial berth apart from the money. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. He also told me that he shall be reaching Kolkata yesterday afternoon. He said that he has already got money transferred to his persons, and once I reach Guwahati and promise it in front of Sri Assam CM Himanta Biswa Sharma, he assured me that Sri Sharma is doing it with the blessing of topple sorts of BJP political party sitting in Delhi. He do not want to be part of his unconstitutional, illegal and downright criminal activity, and hence informing you that me please take action against them who we stationed in Kolkata with token amount and pressuring me to come to Kolkata and accompany them to Guwahati. Since I do not want to be a part of such criminal offence and indulge in such unethical activity which breaks the constitutional structure of the country, would request you to take action as per Section 7C of Prevention of Corruption Act
and 120B IPC and bring this kind of criminal activity to a stop, which strikes at the very heart of the democracy and book the persons as per the provisions of law and law for influencing me for an illegal act in active coalition with others who are operating from behind to topple the present government of Jharkhand with a dangerous design and adopting all sorts of illegal ways by influencing their position being in capacity of public servants। इस बात को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद हमने आदरणीय आलमगीर साहब ने अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को इस बात से अवगत कराया है और तत्पश्चात सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। हम समझते हैं कि जो ये हुआ है निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले समय में आप तमाम मीडिया साथियों से भी आग्रह होगा कि आप जिस तरह से लगातार अपनी बातों को कहते रहते हैं और तरह तरह से सारी चीज़ों को सामने लाते हैं, इस चीज़ को भी ज़रूर लाइएगा कि सिर्फ बिकने वाला ही नहीं, खरीदने वाला कौन कौन है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। क्योंकि हमने देखा है कि पहले जो महाराष्ट्र सरकार गिराई गई उस पर जो विधायक थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो बिकने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो खरीदने वाले थे उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द दंडित किया जाए। जो लोग इस खरीद बिक्री खरीद फरोख्त में शामिल हैं उन पर हम लोगों ने एफआईआर किया है। निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत जल्द होने की हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं। अब हमारे आदरणीय विधायक दल के नेता जो लगातार सभी विधायकों से बातचीत करते रहते हैं, बावजूद अभी पिछले दिनों विधायक दल की बैठक हुई थी, 18 विधायक शामिल हुए थे, बावजूद इस तरह की घटना सामने आई है, उस पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, कल की जो घटना है उस घटना के प्रकाश हमारे डाले हमारे अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी ने प्रकाश डाले। मैं आपके समझ यही कहना चाहते हैं कि कल जब शाम को 7:30 बजे 7 बजे आप ही के द्वारा यानी मीडिया के द्वारा जब हमें प्राप्त हुई, मुझे आश्चर्य लगा और मैं जब इसका दरियाफ्त करने की शुरुआत किए, बाद में नाम भी आने लगा। उसमें हम लोग देखे कि 3 हमारी पार्टी के विधायक, पहले मुझे कोई विधायक कौन है नहीं है, 3 विधायक का नाम आया था। तो हमारी ही पार्टी के 3 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इरफान अंसारी साहब, विक्सल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप जी, इन तीनों का नाम आया। रात भर आपके मीडिया में करीब 12 बजे तक विभिन्न चैनल के न्यूज़ों को हम देखे और एक चीज़ को हमारी आश्चर्य लगा कि कुछ दूसरे तरफ से भी न्यूज़ आ रहा था। वहाँ पर हमारी पार्टी का भी न्यूज़ आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जो है चैनल के माध्यम से बात आ रही थी। और आज जो अनूप सिंह के द्वारा जो एफआईआर किया गया है, ये इसमें सारी चीज़ों को खुलासा हो जाता है। उन्होंने इस बात को साफ इस एफआईआर में अपने पत्र में देने की काम किया है कि हमको विधायक ने बोला था कहाँ जाना है, हमें नहीं जाना है। इसके पहले मीडिया के द्वारा ये बात को आपके द्वारा हमारी संगठन में, हमारी पार्टी के लोगों के संगठन में दिया जा रहा था। इसलिए आपको आज तय करना पड़ेगा जो देने वाला कौन और लेने वाला कौन। अगर इसी तरह देने वाला लेने वाला चलेगा तो इस देश में लोकतंत्र जो है नीचे की ओर जाएगी। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जनता एक विधायक को चुनकर भेजता है उसके अपेक्षाओं के साथ और उनको मैंडेट देता है किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को। और यहाँ पर जनता जो चुनकर भेजते हैं उस गठबंधन का, उस नेता का कोई भी मोल वर्तमान जो है शक्तिशाली जो यहाँ पर शक्ति है वो उसको कहीं भी ठहरने के काम नहीं करते हैं। वो मोल प्रकार से वो विधायक को खरीदने की काम करते हैं।
इसीलिए मैं सारे लोगों से अपील भी करना चाहते हैं जो सच्चाई आपके सामने है, ताकि इस देश की लोकतंत्र का सिर्फ कोई राजनीतिक दल ही नहीं बचा सकता है, और आपकी लेखनी और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये सारी भी तो जो निष्पक्ष की भावना से प्रचारित करे, ताकि सही क्या है गलत क्या है क्यों ऐसा हो रहा है इस बात को आप लोग प्रदर्शित करेंगे। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप इस बात को सच्चाई को सही तरीके से उजागर कीजिएगा, ताकि झारखंड के कम से कम भलाई हो। और पार्टी की ओर से 3 विधायक को जो है तत्काल सस्पेंशन किया जाता है, छानबीन हम लोग कर रहे हैं। अगर और भी कुछ आएगा तो उस पर भी हम लोग लेखा जोखा लेंगे, और उसके जवाब के बाद अगर पार्टी चाहती है कि अगर इस तरह का लोग संलिप्तता पाई जाती है तो उसको भी निष्कासित भी किया जा सकता है। धन्यवाद। एक बार आलमगीर साहब के एक बार बंधु तिर्की जी एक मिनट बंधु तिर्की जी 2 बातें कह ले। क्या इस बात से क्या फील किए हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी बात को सुन लिया जाए। आ जाएगा ना सर? हाँ सब आएगा। कि 2019 में जब से गठबंधन की सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने के लिए डे 1 से लगी हुई है। ये किसी से राज्य की जनता और आपके मीडिया बंधुओं से भी छिपी हुई बात नहीं, और लगातार इनका प्रयास होते रहा है। कई एक तरह की बातें अखबार के माध्यम से और अन्य माध्यम से पूरा सुनने को आता रहा है और आज ये बिल्कुल सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत ही ऐसा है। मैंने चोरी और सीनाजोरी और अपने तरफ से कुछ लोगों का बयान भी आ रहा है इसमें कि वो अपने उनके विधायक लोगों को ऐसे भाई अभी तो कहा गया यहाँ पर कि देने वाला कौन, लेने वाला को तो आपने पकड़ लिया, देने वाला को भी पकड़ना होगा और पकड़ करके उसको आपको इस बात को आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। आज अगर कहा जाए कि जो भी हमारे पार्टी के विधायक इस तरह के क्रियाकलाप में इन्वॉल्व हैं, ये जनभावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, मतदाताओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अविलंब इस पर चीजों को गंभीरता से लेते हुए जो कार्रवाई किया है, और मैं तो आपके माध्यम से कहना ये भी चाहूंगा, अगर कोई भी विधायक किसी तरह का इस तरह का इन्वॉल्व है तो पार्टी को और भी कार्रवाई करने पर विचार करनी चाहिए। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी गैर भाजपाई सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए और कर रही है। महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। आज लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग भी कभी कभी बैठ करके बेमतलब का बयान बहस करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं कांग्रेस वाला ऐसा किया, कांग्रेस, लेकिन ये सारा जनता जान रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इस कुकर्म को की है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जरूर लेने देने वाली बात, आज से बात चल रही है, कभी बोल रहा है कोई टोकन ले रहा है, कोई बोल रहा है कोई फोकन ले रहा है। इसलिए ये जांच पूरे गहराई तक जानी चाहिए और लेने वालों को, आपने तो देने वाला पर हमारा पार्टी से उनके साथ कार्रवाई की गई, देने वाला को भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस देश में हम लोकतंत्र को सही सलामत रख सकते हैं। धन्यवाद। अनूप सिंह आपसे कब पता है आलम साहब, अनूप सिंह आपको कब जानकारी दी है कि उनको ऑफर दिया गया? जो लेटर अभी पढ़ा अभी पता चला आपको? इसका मतलब है कि अनूप सिंह जब ये सारी चीजें मीडिया में आ गया, इसके पहले वो जरूरी नहीं समझे कि पार्टी को बताया जाए, सीएलपी को बताया जाए। देखिए अनूप सिंह कहना था, अनूप सिंह ने खुद अपना आकर हम लोग खुद थोड़े बताया। सर सवाल है अनूप सिंह
आप तक क्यों छिपा कर देना चाहिए? इतना नहीं, इसका जवाब इसका जवाब वही देंगे। नहीं इसी में सवाल है मेरा कि बार-बार अनूप सिंह क्यों, अनूप सिंह को ऑफर क्यों मिल रहा है? और अनूप ऑफर का मतलब खुलासा हुआ तो भी अनूप सिंह कहते हैं मीडिया तो इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं सर। नहीं। पिछले साल 22 जुलाई को मेरा जवाब सुनिए, हो सकता है कि इंसेंट होगा, मैंने हो सकता है कि इस बार उनको खुद कह रहे कि हमको बुलाया था। सर सवाल नहीं, हो सकता है कोई इंसिडेंट, वो अगले बार भी उसको बुलाया था, उसके साथ मिलते जुलते हैं। अगर हम खुलासा नहीं हुआ होता तब क्या होता है? ये तो मीडिया में चीजें आ गई तब अनूप सिंह आपके साथ है। सर एक बात बनती है, अनूप सिंह को पार्टी क्यों दे रही है? अनूप सिंह को आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ये एफआईआर कराया, एफआईआर में बहुत सीरियस एलिगेशंस है आपके एमएलए के अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनाने के लिए बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब थाने से निकल रहे थे अनूप सिंह, उन्होंने वहां पे मीडिया को ये कहा कि हमें तो जानकारी मिली है वो जो पैसा उनका मिला है उन्होंने अपना पैन भी सरेंडर कर दिया है, हो सकता है उनका ही पैसा हो। तो जब पैसा उन्हीं का है तो इतने बड़े बड़े एलिगेशन एफआईआर में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए ये सवाल बन रहा है। नहीं, जब सवाल पूछा जाता है तो उस संदर्भ में जब सवाल ये पूछा जाए कि वो कह रहे हैं कि साड़ी खरीदने के लिए पैसा था, उस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही है, मैं भी था उपस्थित, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जब हम निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आगे की भी जांच होती रहेगी। जो उनको सूचना मिली थी उन्होंने उस सूचना को पुलिस को देने का काम किया है। नहीं, लेकिन ठाकुर जी जब आप साथ में लेकर के गए अपने विधायक को केस करवाने, तो क्या उसी वक्त आपको विधायक ने बताया कि मुझे भी ऑफर था मंत्री पद का और 10 करोड़ रुपए का, या फिर पहले भी था? और पार्टी को अनूप सिंह ने कब सूचना दी? नहीं, देखिए पार्टी को हमेशा वो लगातार सूचना दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मिल रही थी, सूचना मिल रही थी। सारी बातों को जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जब 2 दिन पहले विधायकों की बैठक बुलाते हैं और सारे विधायक शामिल होते हैं तो उस दौरान अगर उनकी बातें कही जो जा रही है वो झूठी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात सच हो जाती है। तो उन्होंने उस बात को नहीं, यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं राजेश जी कि पहले सूचना अनूप सिंह ने दिया, हाँ, लेकिन उस समय आपको भरोसा नहीं था आपके विधायक की बात पर। नहीं, देखिए यही नहीं, इसको विधायक की बात पर भरोसा की बात नहीं है। जब भी कोई बात होती है तो उसकी जांच पड़ताल होते रहती है। आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल। आप जब आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की बात हुई है तो हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग में लगातार कहने का काम किया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सभी विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो सामने घटित हुआ है तो अब ये प्रमाणित हुआ है कि हाँ एक प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुत्सित प्रयास लगातार करती रहती है। आपने देखा होगा सबसे पहले इस चीज का खुलासा आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने किया था, आप लोगों के समक्ष किया था कि कुछ विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। तो जिस दिन से सरकार बनी है लगातार इस तरह के प्रयास होते हैं। एक प्रयास जरूर आज तरीके से विफल हुआ है। तो आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि आप जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा सा इसको और समझने दीजिए, सारी बातों को सामने आने दीजिए। हम लोग लगातार आपसे मिलने वाले लोग हैं। हाँ, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। की बात आ रही है, मुख्यमंत्री सिर्फ अनूप सिंह को ही दिया गया ऑफर या अदर एमएलए को भी दिया गया है या किसी विधायकों से हुई है? नहीं, देखिए जिन विधायकों से हुई है अभी तो आपको ताजा मामला है, कल रात की घटना है। अभी हम लोग सभी विधायकों से इस तरह की बात पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही फिर कोई बात सामने आएगी तुरंत आपके सामने हम होंगे। मतलब ये बात नहीं, हेमंत बिस्वा के बारे में वो कहाँ कह रहे हैं कि उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि इनमें से एक विधायक ने फोन किया और कहा कि हमारी बात हो गई है, अब जो है आप आ जाइए तो आपको सामने में करके बात करा देंगे, इतने का ऑफर है, मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाएगी। इन सारी बातों का उल्लेख किया है उन्होंने। एक सवाल का जवाब दीजिए। इसके पहले अनूप सिंह ने कोतवाली थाना में दर्ज कराया, अब अरगोड़ा थाना में, जबकि वो पीओ पुलिस और ये ऑफेंस का एरिया नहीं बन रहा है। अरगोड़ा थाना में एफआईआर आप लोग ने क्यों करवाया? देखिए अब ये बात आप अगर पूछेंगे कि किस थाने में अब क्यों कराया, जो थाना समझ में आया वहां जा करके कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सूचना देनी थी, सूचना ये एफआईआर कोई इस तरह का मैटर नहीं है। वो कोतवाली थाना में, हाँ
अनूप सिंह की किस विधायक से बातचीत हुई है? क्या बोले हम? उनमें सबके पास रिकॉर्डिंग है, क्या उन्होंने वो रिकॉर्डिंग किया है? नहीं, वो तो देखिए उन्होंने कंप्लेन खुद किया है, उन्होंने कंप्लेन खुद किया है। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? देखिए हम जांच एजेंसी नहीं है, हमारे विधायक ने एफआईआर दर्ज करा दिया है, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। जो भी आया मीडिया से आया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in